Mm. So, welcome all. Today we have with us two special guests. Both are my students, and the first one is Deepti Rohila. She has secured All India rank 39, and there is Akansha Singh. She has scored All India rank 44. So, I welcome both of them. First of all, congratulations to both of you. So thank you for having us. So, because both of them have been my students for geography optional. So we are keeping this podcast specifically for the optional strategy, and it was very due because we have been getting lots of demand. बहुत सारे बच्चों का demand है कि strategy पे discussion करें, particularly Deepti because she has secured very high marks, 323 marks. So discuss करते हैं दोनों के marks को भी discuss करेंगे and ultimately जो strategy थी. So एक दो चीज़ें पहले देखते हैं कि दीप्ति तुम्हारा जो प्रिपरेशन था ज्योग्राफी का उसमें अभी वी वर आल्सो हैविंग अ कन्वर्सेशन विद दीप्ति सो शी वाज सेइंग दैट शी हैड रेड बुक्स आल्सो सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे तुमने मैनेज किया बिकॉज ज्योग्राफी में एक तरह का परसेप्शन है कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं इतना सारा टाइम लग जाता है तो कैसे वो मैनेज किया वो टाइम बिकॉज आई गेस ये तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट था हाँ तो भी तो फाउंडेशन क्लासेस क्या वो एक बेस प्रोवाइड किया जिसकी वजह से बुक इजी हो गई या फिर इट वाज अदर अदर वे अराउंड Sir, I think in my they provided the basic content wherein I could build up in the future. So they were really helpful. But what books did was they interlinked whatever I have read. I think I knew, say, we were discussing in geomorphology, we have cyclical school, we have denudation chronology. All these topics are mentioned in the syllabus. But by reading books, I got to know that denudation chronology is the topic in landform development that is in the cyclical school. So I think that interlinkage is developed with your basic books. So I think everything is necessary, and once you have the foundation very strong, I think from there on you can build on. आकांक्षा यू टेल मी क्योंकि तुम्हारे केस में आई थिंक इट वाज रिवर्स यू फर्स्ट रेड द बुक्स एंड देन यू अटेंडेड द क्लासेस That's right, sir. First, I had done the basic books, and after that, I went for 500 plus course. So, 500 plus, maybe after doing paper one, I was aware of most of the things, but in the end, between prelims and mains, when you complete paper two, at towards the end, that was the time when I started making those linkages, which till then I thought were missing from my understanding. So, towards the very end, I could understand that okay, this is how you link your paper one to paper two. That is also very important. And then any kind of question which is asked, it gives you a sort of idea to answer any question. Yeah. नहीं ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पहले भी दोनों से पूछा था कि क्योंकि तुम दोनों का ही बैकग्राउंड है ज्योग्राफी में ठीक है यहाँ पर ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट आता है हु डज नॉट हैज़ अ बैकग्राउंड इन ज्योग्राफी फिर उसके लिए बुक्स को पढ़ना और जिस तरह की बल्कि बुक्स मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं मार्केट में तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ठीक है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ टू गो थ्रू द बुक्स कैसे बुक्स को अल्टीमेटली यूज़फुल बनाया जाए अगर बुक्स हम पढ़ भी रहे हैं बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे रैंडमली सजेस्ट कर देते हैं कि यू जस्ट गो थ्रू सविंदर सिंह दिस बुक दैट बुक एंड अब एक स्टूडेंट जो सुन रहा है उसके दिमाग में परसेप्शन एक आता है कि भाई मुझे एंड टू एंड बुक पढ़नी है ठीक है तो बुक्स को अगर हमें यूज़ भी करना है तो हम कैसे करें सर आई थिंक कोई भी बुक मैंने एंड टू एंड तो नहीं पढ़ी है सविंदर सिंह भी इफ आई रेफर फिजिकल ज्योग्राफी का वो भी सिर्फ लैंड जो फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी है उसके ऊपर ही बुक्स का कंटेंट वुड बी वाज यूजफुल फॉर मी एंड सेकंड आई वुड से दैट there are some books which are fundamental. I think, say, Majid Hussain book for models, Yes, yes. and for settlement also there are few very good examples.
and another would be Rupa Made Simple, D.R. Khuller. I think these are not replaceable with any content. So I think one has to be mindful that which book, which content is he or she referring. So in addition to that, I would say कि जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसका बैकग्राउंड नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो वो एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, वो भी +1 +2 की, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उसके बाद हम जा करके उसको स्टैंडर्ड बुक्स को थोड़ा डील कर सकते हैं। उसमें भी हम सेलेक्टिव रहें, माने हम सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखें, एंड देन वी सेलेक्टिवली रीड दोज बुक्स, एंड देन वी कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम अदर मटेरियल विच इज़ अवेलेबल. But before that, I think looking at the books, it can help to get a preliminary insight into the syllabus and the nature of the exam as well. देखो, मैं ये क्वेश्चन को ज़्यादा हाईलाइट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कि गाइडेंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से पर्टिकुलरली। तो इस बार भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु हैव गॉट गुड मार्क्स, लाइक देयर मार्क्स आर इन 290s 280s में, who actually did not study any books. They just focused on the notes. They did their practice. ठीक है। There is one student जिसने कि बेसिक जो मैंने एक दो चीज़ें जो हमारे जो फाउंडेशन क्लासेस का होता है उससे उसने कुछ नोट्स पढ़े और फिर उसने क्या किया, एनसीईआरटीज पढ़ी हैं साथ में और 500 प्लस किया है एंड अल्टीमेटली बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो मैं मतलब इसलिए भी इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ बिकॉज देखो मेरा ये मानना है कि देयर कैन नॉट बी वन सिंगल रेसिपी फॉर एवरीवन। ठीक है। एंड इट इज ऑल अबाउट व्हाट क्लिक्स फॉर यू। ठीक है। देयर आर पीपल जिनको जैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों का बिकॉज ज्योग्राफी था इन योर ग्रेजुएशन, तो वो जो एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट माय प्रिपरेशन इज लाइक गुड। ठीक है। और उस सेंस में बुक्स दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। बट देयर आर स्टूडेंट जो बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पता है, वो इंजीनियर्स हैं, उनको पता है कि भाई इतना रट्टा मारना है और वो रट करके उतना लिख करके आ जाएंगे एंड दिल डू वेल। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज माय सजेशन कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू बुक्स, बुक्स को स्पेरिंगली पढ़ो। ठीक है। और बहुत फोकस्ड, और इनफैक्ट एक पहले से एक परसेप्शन कह रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क बनाओ दिमाग में, तो बुक्स को गो थ्रू करना बहुत इजी होता है। मैं भी इनफैक्ट अपनी क्लासेस में सजेस्ट करता हूँ, लाइक डी.आर. खुल्लर, मैंने क्लास में भी सजेस्ट किया था कि डी.आर. खुल्लर पढ़ो, बिकॉज जब हम क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस में हमारा फोकस ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ों पर होता है एंड अल्टीमेटली बहुत सारे जो फैक्चुअल डिटेल्स चाहिए जो मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो नहीं हो पाते हैं उस तरह से डिटेल में क्लास में। तो वहाँ पर बुक्स की नीड डेफिनेटली बनती है। बट फिर भी आई एम सजेस्टिंग दिस, आई एम एम्फसाइजिंग दिस बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग, वो रील्स का ज़माना चल रहा है, वो बस सुनेंगे बुक और फिर उसके बाद वो सीधा सीधा पूरा पूरा बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अभी अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इस बार ज्योग्राफी में बड़े अच्छे स्कोर्स आए। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस मैंने देखा है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक चेंज किया यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में बच्चों को एम्फसाइज करने की कोशिश की कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी बहुत फोकस करना, विच वॉज नॉट द केस बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड। ज़्यादातर लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते थे और वो वैसे ही चलता था। तो अगर हम देखें, जैसे दीप्ति तुम्हारे मार्क्स दे आर एक्सेप्शनल, you have got I think 177 marks in paper 1. They're exceptional. I cannot go back and cannot even remember कि इतने high marks 177 marks paper 1 में last time कब आए थे। They are so much high. ठीक है। So what was your strategy to prepare the paper 1? ठीक है। पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर किया और एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 को लेकर के? Thank you, sir, for those nice words. So, sir, I think as you said कि human geography पे I had focus शुरू से ही, because I think human geography easy भी हो जाता है. We study current affairs और उससे link कर देना static से, that would be really smart approach. और जो compulsory question होते हैं, I think I did 2 questions from human geography and 1 from physical geography.
And regarding the approach, so in paper 1 we have two parts, physical geography and the human geography. For physical geography, the approach was making the frameworks. Say for landforms there are certain types, say fluvial, arid, karst, coastal, glacial, periglacial. So what I did, that after reading the text and everything, I, between the prelims and the mains time, I made the frameworks, and that was done exclusively in those 3 months time. And I think that really helped, because we know, say a question is asked on geomorphological cycles, so I should have quickly that these are the 7 cycles and these are the topics I would write. So I would say that making the frameworks in the physical geography part is really crucial, and interlinking it with the current examples. I remember there was one question of regional environmental changes, and from newspaper I've picked up the craft that I have to use the keyword, say savannization of Amazon or Atlantification of Pacific Ocean. So when the examiner is checking, he can sense that I have used those keywords which are not generally used by the people who are just reading the GA subject. So they have a knack of optional, they know the subject well. So I think in physical geography, using the keywords and making the structures really well, not just in the content but of the question also, that can work. And in human geography, I feel the recent examples and using the content of GS1 and GS3, even GS2 can be used in the human geography part. It can fetch really good marks. And certain examples of from Indian geography, I think that really worked. So I had the structure in mind that whenever a question would be asked, I would break down it into 4 or 5 parts. Then Indian example would be there, current example would be there. अभी एक ट्रेंड हो गया है पेपर में कि अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़े से वेग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हर साल की अभी ये स्टोरी है। लाइक वी वर लाइक अ काइंड ऑफ लकी दिस ईयर कि इस बार फर्स्ट क्वेश्चन सब बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स नहीं आया। इट वाज अबाउट जियोस्ट्रॉफिक विंड, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी भी आउट ऑफ बॉक्स था। इनफैक्ट अगर तुम फाउंडेशन क्लास में मैंने बताया भी था कि जियोस्ट्रॉफिक विंड अगर मैं अभी टेस्ट में, बिकॉज आई हैड आस्क्ड इन द टेस्ट एट दैट टाइम 500 बिकॉज अगर मैं देखूं इसमें क्वेश्चंस हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज ओशन रैंचिंग एंड एक्वा काउबॉयज। ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आपने बुक पढ़ी है। लाइक इट वाज देयर इन सविंदर सिंह। Sir, I don't think I've read this in the book. मैंने just decipher किया कि aqua cowboys and ocean ranching. So कुछ sea grass से related होगा, sea cows we study in prelims. तो मैंने इसकी case study भी बना दी, as if I know कि ocean ranching क्या होती है. So I think वो थोड़ा सा common sensical approach भी work कर जाती है ऐसे vague questions में. और इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन था नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल एनरिचमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। फिर डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, environmental implications on of economic geology. This was a more straightforward. So एक जनरल ये बताओ कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लाइक तो उसको कैसे डील करते हैं? I think so. Breaking into the topics, there was one question: natural processes of soil formation and impact on food production. So, in the basic content, we read, say, there are 6 processes of soil enrichment: weathering, transportation, translocation, organic changes, glaying, fossilization, and desilication. So, these are the processes of soil formation. So, this is one component. Another component is food production. So, food production has cropping, fishing, and livestock. And this is one part of availability. Then there is accessibility, affordability, utility, and sustainability. So it is just a 10-marker question, and we have so much of content. Yes, So I think if you know that this is this component, these are the subtopics, then we can mix and match and write the content. definitely that is the way to do that. And very important thing कि यहाँ पर ये समझना चाहिए कि टू डू दिस थिंग आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, और यही वाला क्वेश्चन इस साल मैं मतलब बताता हूँ। आई वाज लाइक सॉइल का मुझे क्लास फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाना था, तो इस बार सॉइल की क्लास लेने से पहले मैं 2 दिनों से रिसर्च में बिजी था कि अभी मैं इस बार कुछ सॉइल में ऐड करूँगा। एंड प्रांजल सर वाज टेलिंग मी कि क्या आप 2 दिनों से उसी में लगे हो।
ultimately I actually dealt this same question in the class, फाउंडेशन क्लास में इस बार मैंने पढ़ाया कि जो तुम्हारा एग्रीकल्चर और सॉइल में टेक्निकली किस तरह से रिलेटेड है, हाउ फॉर एग्जांपल कि पीएच का रोल क्या होता है, अल्टीमेटली टेक्सचर का रोल क्या होता है, स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बार लिंक करके पढ़ाई भी थी क्लास के अंदर। बट डेफिनेटली देखो, अगर नहीं भी सपोज वो टेक्निकल चीज़ उस तरह से नहीं भी पता है, देन ऑल्सो यू कैन वट एवर यू नो, अगर वो बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो यू कैन फ्रेम, बिकॉज जो मैंने क्लास में पढ़ाया था इट वॉज मोर वेरी एग्जॉस्टिवली, और वो उतनी सारी चीज़ें आप लिख नहीं सकते बिकॉज इट वॉज एसेंशली 10 मार्कर। ठीक है। सो बाकी अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी हैज़ बीन ऑल्सो अ काइंड ऑफ थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। रिसेंट टाइम्स में देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इजी रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑल दो मेरा परसेप्शन ऐसा है कि 2018 के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा सा ऑन द टफर साइड हुआ है कंपेयर टू फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। बट स्टिल ह्यूमन ज्योग्राफी से, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी में स्ट्रांग हो तो देन यू आर एबल टू डू वेल। सो व्हाट वाज योर बोथ ऑफ योर अप्रोचेस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी? आकांक्षा, यू टेल मी फर्स्ट। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए तो जैसे आई रेफर मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, डिड यू ऑल्सो डू द सेम थिंग दैट यू अटेम्प्टेड टू चॉइस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी? From human geography, did you attempt two questions or from the physical you wanted to? from the physical I attempted to. Okay, you Yeah. attempted physical. Yeah. Okay. ठीक So, है। so in human geography, I referred to your notes first and the books that she has already mentioned. तो इसमें सर ह्यूमन ज्योग्राफी में ये था मेरा कि जैसे there was one question last time भी हमने डिस्कस किया था, लॉश वाला जो क्वेश्चन आया था। तो although the question was centered around Losch's model, but I understood that you cannot discuss Losch without discussing Christoller. तो उसमें उस क्वेश्चन में इनहेरेंटली आपको थोड़ा सा वो कंपैरिजन भी लाना ज़रूरी था, just to say कि how Losch's model is better or worse than Christoller's model. So I think ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमको उसका एक होलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग, एक बाकी थ्योरीज से भी उसका लिंकेजेस और ये सारी चीज़ें और एप्लीकेशन पे थोड़ा सा स्ट्रेस हमें हर क्वेश्चन में देना चाहिए, ताकि ये थ्योरीज पुराने टाइम में दी गई हैं तो आज के टाइम अगर हम उनको पढ़ रहे हैं तो देयर शुड बी सम यूटिलिटी ऑफ दीज थ्योरीज, सो वी शुड हैव दैट lens also to look at the application of the theories. Yes, I am just going Yeah. through this question. It was question 7A. Explain with suitable diagrams Yeah. a Losch model of theory of location related to central places. Why has this been criticized? So इस बार एक के पेपर में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी हमने कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया एक्सप्लेन विद सूटेबल डायग्राम्स। अभी तक के जो पेपर्स होते थे देयर यूज्ड टू बी लाइक एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स आते थे। तो इस बार एक और टर्म ऐड कर दिया, एक्सप्लेन विद सूटेबल डायग्राम्स। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, what do you think is the role of diagrams in getting good score in geography and paper one as well? तो जो उसमें क्या रोल था? तो और दोनों में मतलब जैसे एक परसेप्शन है मार्केट में, अगर किसी से पूछो तो एक रैंडमली कोई भी बोल देता है कि भाई आपके हर पेज पे एक डायग्राम होगा तो आपको नंबर मिल जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही था? Sir, I think it's subjective because there have been people who have not drawn the diagrams and they've gotten marks. And I have drawn diagram, I think, in every page and I've also gotten marks. So I think it is very subjective. The key is, have you answered what is asked rather than randomly drawing the diagrams? But I think the diagram really helped because examiner is also human. And if we have given a certain very simple diagram, that also breaks the monotony and that finds our answer copy interesting and different from others. So from where I prepare diagrams, I would say that some from your notes, the urban morphology models, some from the books, say on the models, the model book of Majid Hussain, it has really good diagrams. Yes. So I think the key is to compile all the diagrams in one in your notes, and then they become very handy. And what was your strategy, Akansha? So I was also under the impression that diagrams and maps can fetch you marks, but I think you have to go question by question. There are certain questions where you can analyze things better. You may not necessarily push in a diagram if it's not required, but what happens is that when we write, we have like 7 minutes for one question, 10 marker. So we have to
devote a lot of time in writing, and when we make diagrams we express a lot by using that space also, and we express a lot by making that diagram. Yes. So it makes our job easier is what I Yes, think. yes, yes. So from that perspective they are useful. And also geography, we are trained to make maps and diagrams as far as possible in every question. So this time they have explicitly written, so you cannot miss it. Yes, definitely. There is no scope of ignoring diagrams. Mm. In fact, my view on this is that ki basically you are writing an answer. That means you are communicating. Okay? You are expressing yourself, and diagrams help you in that expression. It is very easy for the reader who is there to get a gist of what you are essentially writing. Through the diagrams, you can write in short. Geography में obviously एक special type of diagram होता है, which is the maps, which is both of कि locational science हम geography को बोलते हैं. इसलिए उस तरह के diagram की जो relevancy है वो बहुत बढ़ जाती है. There is no doubt about that. और अगर हम देखें तो majority of questions में actually में there can be some good diagram या maps बनाए जा सकते हैं. तो इसलिए इनफैक्ट ये हम अब जैसे क्लासेस में सजेस्ट भी करते हैं कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल तरीका जो है आंसर करने का उससे थोड़ा सा अलग हटो. जैसे हम ट्रेडिशनली कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम लिखेंगे क्या. ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे पहले सोचो कि इसमें कौन सा मैप या डायग्राम आ सकता है, एंड फिर उसके बाद अपने टेक्स्ट को उस हिसाब से आप फिट कर सकते हो. तो अगर आप इस तरह से सोचते हो तो यू विल गेट, बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में ये तो हमेशा सही रहता है. तो एक चीज़ दोनों के कन्वर्सेशन से हमें एक और बात पता चल जाती है कि विच आई हैव बीन रिपीटिंग फ्रॉम 2018. मेरा एक परसेप्शन है, ठीक है, कि 2018 में देयर वाज अ चेंज इन द हेड एग्जामिनर ऑफ यूपीएससी. ठीक है, उससे पहले हु वाज द पर्सन हु वाज मेकिंग द पेपर, ही हैड अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड इन फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, तो अगर तुम देखोगे 2009 से लेकर के 2017 तक के पेपर्स, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी बहुत टफ आती थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट. 2018 के बाद से यू विल फाइंड कि एक ट्रेंड चेंज हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी कंपैरेटिवली इजी हो गई. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इफ़ यू लुक बिटवीन द पीरियड 2009 से 2017 तक के पीरियड में देयर वर 30 क्वेश्चंस ऑन जियोमॉर्फोलॉजी आस्क्ड. ठीक है, उस 30 क्वेश्चंस में से केवल 3 क्वेश्चन टेक्टोनिक्स रिलेटेड थे, जो कि इजी है जियोमॉर्फोलॉजी में प्रिपेयर करना, एंड रेस्ट 27 क्वेश्चंस वर एक्चुअली रिलेटेड विथ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है. 2018 के बाद क्या हुआ है कि यू विल फाइंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन ऑन टेक्टोनिक्स. तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चेंज हुआ है, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो एग्जामिनर है अभी यूपीएससी का, ही हैज़ मोर एक्सपर्टीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी. उसका जो एक्सपर्टीज फील्ड है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का. इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का जो नेचर है वो थोड़ा सा और अप्लाइड हो गया है. ठीक है, और इसलिए कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है जैसे पहले आते थे उससे कंपेयर. तो इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि इस तरह का बायासनेस नहीं बनाना है कि भाई मैं 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से ही करूँगा, ठीक है, या 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से ही करूँगा. इट शुड बी द पेपर विच शुड डिटरमाइन कि उस समय वो पेपर कैसा आया है. कई बार फिजिकल ज्योग्राफी में बिल्कुल सीधे-सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें अगर आपने अच्छे डायग्राम्स बना दिए हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स फेच करोगे. ठीक है, तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर 2. इसमें कुछ तुम लोग ऐड करना चाहोगे? पेपर 1, सॉरी. Sir, I would say that structuring is really important in the answer, and it is not just a plain answer that is being asked. There is one introduction, then if I take an example of say perspective question, so I had this framework ki introduction mein I would write say aerial differentiation, what is it, one scholar name, some historical evolution, and then there would be a compulsory flow diagram about these scholars, say I mean there were many Hartshorne and etc. So this was my framework. So introduction mein that was the key. Then whatever is asked should be given appropriate space, and then there should be one current affairs example or a case study. There should be one India in linkage in the paper 1 as well.
then there should be critique of Mm. the subject what is asked, and then there should be conclusion with a keyword. So I think that approach is, I think, used in all the questions, and it should be very content dense. Mm. And I think that is the key for good marks. I also didn't think like that. You have done really well. So, what about you, Akansha? Do you like to add something? So in my case, I would say that I was quite confident. कुछ भी आएगा लिख देंगे. बहुत structuring नहीं की. वहाँ जैसा आपने बताया, I went to the exam hall and I thought that देखते हैं कौन सा question attempt करना. I was very free. I had not come with this कि I will attempt 2 from here, 3 from here. Like it depends on the question, which I can answer, which I can't answer. One thing was clear in my mind, that write what is asked. Yes. I did not have a lot of structures in mind, but I knew that I have to at least answer what is asked. That was key. Introduction, conclusion will be there. If I can think of some case study, I will write it. If I cannot, then I will not push it very hard, because sometimes it just doesn't come in the exam hall. It doesn't come naturally to you. So that was my idea. And if I could get some examples I could recollect, I would use them also. But it was not true for all the questions. एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ. देयर इज़ लॉट्स ऑफ दिस एडवाइस दीज डेज, जो बहुत एक एडवाइस दी जा रही है बच्चों को. मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे पूछते हैं कि आपको हर आंसर में स्कॉलर्स को कोट करना है एंड लाइक दिस. सो वाज इट आल्सो ट्रू विथ यू, बोथ So ऑफ यू? last year I did this mistake that I've written every scholar whatever is asked, क्योंकि वो थोड़ा geographical लगेगा और थोड़ा सा, but I think it's not true, sir. I mean, this time I focused, one scholar name would be there in the introduction so that it is known कि I know the subject well, but majority part of the page should be devoted to what is asked, and what is asked is generally very simple. It's Yes. just few, I mean, what do you call it, cherry on the cake, but the cake should be really good. Yes. Okay, so now coming प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से ज्योग्राफी के अंदर. एंड द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आस्क अ नॉन ज्योग्राफी optional student also to attempt the paper, he or she would be also in a position to write sufficiently well enough in paper 2 geography optional paper. So the paper has become very very generic. बहुत ज़्यादा जेनरिक हो गया है, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल से आते हैं. तो उसको कैसे टैकल किया तुम लोगों ने? आकांक्षा, यू स्टार्ट. You had got very good marks in paper. So in geography paper 2, there is no dearth of content, I suppose. The only thing is, how do you link it with paper 1? Because even if it looks like a GS paper, it is essentially an optional paper, which we should remember. Also, for instance, if we can talk with an example, there was this question on historical cities. In fact, this question is in front of me. Yeah. A large number of Indian cities have a complex morphological characteristics due to their historical evolution. Historical evolution. So when this question was given, I did not know actually map of the city then and there. I mean, thinking where are the roads, where is the Kashi Vishwanath temple, where are the streets, and so on. And then I explained in a passage that how and then as she has also done, she has traced it from the previous times, how the morphology of the city is changing through ages. Then you can also use the concept of Kalosar, how he talks about cultural landscape and so on. So this is a very generic question per se, but you can give it a geography touch by using the knowledge of paper 1. So, and you have to be cautious in each and every question that you are answering over here, that it is a geography paper and we have to make essential theoretical linkages with paper 1 with adequate maps, diagrams, and illustrations. Sir, I would say that in this question, I had the framework from paper 1. In the introduction, I know that I have to write evolution, scholar name, so I added. There is this framework of Aryanization, Persianization, and Westernization. Then in the conclusion, I added postmodern cities. So I think I linked everything, and that's how I've answered this. And it was mentioned, I think, developing and developed world. So there was map in the question. There are, I mean, names and keywords. So I remember in the classes, मैंने भी एक बार अभी जैसे क्लासेस करवाता हूँ तो मैं अपने विलेज का वो जो एक केस स्टडी करवाता हूँ in the settlement. So I remember 1 year this question was asked about how the morphology is changing. मेरे जितने स्टूडेंट्स थे सब ने वो मेरे विलेज का केस स्टडी लिखा. एग्जामिनर मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि ये कौन सा विलेज है यार इतना फेमस.
सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सजेस्ट कि कई बार देखो ज्योग्राफी हमारे आसपास है, ठीक है, और हम अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हमेशा उसको ऑब्जर्व करते रहना है, और अल्टीमेटली अगर हम अपने एग्जाम्पल्स वहाँ पर बना करके लिख सकें या केस स्टडीज़ बना करके लिख सकें तो वो बहुत मार्क्स फेचिंग होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि इन वन ऑफ माई अटेम्प्ट्स व्हेन आई वाज राइटिंग, तो एक बार इस पे लिखना था, रूरल अर्बन फ्रिंज पर लिखना था, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा था वो था, बट इट यूज टू बी 60 मार्कर उस टाइम पर। तो अल्टीमेटली फिर जब मैंने लिखा उस पर रूरल अर्बन फ्रिंज पे, तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं, तो अब लिखूँ क्या। तो व्हाट आई डिड कि जो मेरा लखनऊ सिटी में जब वहाँ पे रहता था, गोमती नगर, तो इट वाज एन एक्सटेंशन एक तरह से। तो वहाँ पर बहुत सारे जो विलेजेस थे, वहाँ पर अभी भी जैसे गांव वो लगा हुआ है, तो मुझे वो जगहें पता थी, तो मेरे को समझ में इतना तो समझ में आ रहा है कि दैट वर पार्ट ऑफ द रूरल अर्बन फ्रिंज, नाउ दे हैव बिकम द अर्बन विलेज। तो वो उस तरह से मैंने उसकी केस स्टडी बना करके पूरा मैप बनाया वहाँ पर और लिखा, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट पेपर। सो डेफिनेटली। एंड आई थिंक वो फोर्स नहीं होते सर, हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल अपने आप ही नेचुरली आ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पेपर 2 में और क्या किया स्कोर करने के लिए? सो आई थिंक जैसा आपने बोला कि वन हैज़ टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। आप बुक से पढ़ तो सकते हैं, नोट से पढ़ सकते हैं, बट योर ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू एंड कॉमन सेंसिकल अप्रोच इज गोइंग टू हेल्प यू। Geography is all about space. You have to attach spatial angle to every question, Yes. right? So the more observant you are, and I think the examiner also likes such case studies because this is not something that he also reads daily, Yes, but yes. this is something innovative coming from your side. Mm. And they can also assess that this is not prepared in advance. The student is doing it on spot. So I think geography paper 2 के लिए बाकी तो है, Dear Khuller is a good book. There are notes, coaching notes and everything. But I think अपने के और केस स्टडीज को इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। Yes. जैसे वी वर टॉकिंग कि हम लोग अफ्रीका में कोई केस स्टडी पढ़ लिए पर वो इंटरनलाइज नहीं हुआ तो यूज कैसे करेंगे? So you have to either read it in little detail, compile it, see some YouTube video about it so that it gets ingrained in your mind and you can use it further. Nahi to it is just in your notebooks and you are not drawing any utility out of it. Mm. आंसर आई फील कि एक एग्जाम्पल को काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है। आई थिंक दिल्ली एनसीआर का मैप है, वो अर्बनाइजेशन में भी होगा, वो एनवायरमेंट चेंज में भी होगा, एंड आई ड्रू इन द प्लानिंग रीजन ऑल्सो। सो आई थिंक कुछ ही एग्जाम्पल्स है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है। फ्यू एग्जाम्पल्स एंड यूज देम रिपीटेडली। यही बात है कि प्रिपरेशन को थोड़ा स्मार्ट रखना चाहिए। जैसे कि मैं क्लास में भी जैसे बताता हूँ कि कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर पेपर 1 में भी हमें एग्जांपल्स देने हैं, केस स्टडीज़ देनी है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कहाँ से करूँ? तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि यार देख, इंडिया भी तो वर्ल्ड का ही पार्ट है ना। तो अगर बिकॉज़ अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ एग्जांपल और केस स्टडी क्या है? द पर्पस इज़ बेसिकली टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है? ताकि अगले बंदे को समझ में आए, क्योंकि हम कोई चीज़ बात बोलते हैं और उसके साथ अगर हम साथ में एविडेंस भी दें, तो उस सेंटेंस का पावर बहुत बढ़ जाता है। सो दैट इज़ द प्राइमरी पर्पस। तो वो एविडेंस आप कहीं से भी दे सकते हैं। आप पूरा का पूरा आपका पेपर 2 तो एक तरह से केस स्टडी है ना पेपर 1 का। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू स्टडी द पेपर 2 इन दिस फैशन, तब वो चीज़ उसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी निकलती है। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को बोलता भी हूँ कि क्लासेस में भी, जैसे मैंने तुम लोगों को भी बोला होगा कि ये पेपर 2 का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पेपर 2 में जो टेक्स्ट हैं, जो भी हमारे पास बुक्स हैं, वो दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव, कोरोग्राफी दे आर। लेकिन जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको उसको साइंटिफिक बनाना है, उसको कोरोलॉजी बनाना है। वो तभी हो सकता है जब आप अपने थ्योरीज के साथ लिंकअप करो और साथ में एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज अच्छे से ऐड करो। एक और पर्टिकुलरली जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भर के देते हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स आते हैं। सो डू यू ऑल्सो थिंक द सेम थिंग कि पेपर 2 में एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज का बहुत बड़ा रोल था? Yes, sir. I feel regional examples ka there is, I mean, really important role. If I give example, if you're making the map of Delhi NCR, that is one thing. If you're making the map of Delhi NCR, writing the cities, say Gurgaon, Sonipat, Panipat, Noida, Ghaziabad, that shows ki you have read. I mean, I'm saying the same thing, that urbanization is expanding. In both the things, I'm saying the same thing, but it's the example. For example, 1, 2, 3, 4 cities, or say show it in a diagrammatic format. So I think that is
that what separate GS and geography option paper 2. Yes, I think case studies examples are useful, but again, we have to be mindful that it is catering to the question or not. That is there. And the other thing I would like to add is that you need to have that vocabulary of geography when you are answering paper two. There are certain terms which should be there in your answer so that it doesn't look like you're a novice in the subject. एक और इसी केस स्टडी से ही एक क्वेश्चन है मेरा कि वी कैन ऑल्सो राइट केस स्टडीज इन जीएस, मस्ट यू मोस्ट पीपल मस्ट हैव डन दैट, ठीक है? तो व्हाट वाज डिफरेंस कि जो ज्योग्राफी की केस स्टडीज, वाज देयर अ डिफरेंस इन राइटिंग द केस स्टडीज ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम हाउ यू आर राइटिंग योर एग्जांपल्स केस स्टडीज इन जीएस? I think sir GS में we write only ऊपर से दिल्ली एनसीआर एग्जांपल एज आई गिव. इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके सिटीज के नेम लिख के और छोटा, that is what separates optional and GS. आई थिंक बिकॉज टाइम फैक्टर होता है वहाँ पे जीएस पेपर में और कम टाइम होता है लिमिटेड, तो वी जस्ट राइट एग्जाम्पल सो एंड सो, बट हियर केस स्टडी मीन्स यू विल डिस्क्राइब इट मोर, यू विल मे बी मेक एन इलस्ट्रेशन, यू विल मेक अ मैप विच वी मे नॉट नेसेसरली डू इन अ जीएस पेपर. सो दिस इज आई आल्सो वांट टू सजेस्ट कि जब हम ज्योग्राफी में केस स्टडीज कर लिखते हैं, तो ज्योग्राफी जैसे कि अभी आपने बात किया कि एक लोकेशनल साइंस है, तो यदि आप उस केस स्टडीज के अंदर कुछ छोटा मैप बना पाओ, तो दैट इज अ मोर रिलेवेंट केस स्टडी, दैट इज अ मोर ज्योग्राफिकल केस स्टडी, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू फेच यू वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? एक और पेपर 2 में एक बच्चों का एक पेन पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, और उन्होंने ऑप्शन ले लिया, उनका एक पेन पॉइंट है मैपिंग, ठीक है? क्योंकि ऑल्दो अभी रेलेवेंस कम हो गया, पहले अगर हम देखें तो एक 60 मार्क्स का आता था, बट अभी ओनली 20 मार्क्स का आता है, बट 20 मार्क्स भी दे आर नॉट टू बी लेफ्ट आउट. और एक और चीज़ साथ में हुई है कि जो एंट्रीज़ हैं, इस बार की एंट्रीज़ तो फिर भी देवर ईजी, ऑन द ईजियर साइड, बट अगर हम पीछे जाएं तो द एंट्रीज दैट यूज टू बी आस्क्ड, उसमें से आपने अच्छे से भी प्रिपेयर किया तो 6-7 एंट्रीज नॉर्मली होती थी. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर द मैपिंग पार्ट? सर मैंने मैपिंग को केवल 20 मार्कर नहीं देखा, मेरे को लगा कि एग्जाम्पल्स आएंगे कैसे अगर मैपिंग नहीं होगी तो. सो सीइंग मैपिंग जस्ट नॉट 20 मार्क्स का पेपर बट पूरा 200-250 मार्क्स वट एवर इज द नंबर. एंड ये सर प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है क्योंकि मैपिंग से डायरेक्ट नेशनल पार्क के क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दैट. इट साउंड्स वेरी बल्की बट इट इज कवरिंग लॉट ऑफ द सब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वाज ग्रेटफुल कि वर्ल्ड मैपिंग नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इंडिया की मैपिंग पूछी जा रही है. तो उसमें सर, एंड द गुड थिंग इज दैट इन दैट क्यूसीएबी द मैप इज क्वाइट स्मॉल. आई मीन उसका Yes. डायमेंशन छोटा है, तो थोड़ा सा अगर ऑफ भी होता है तो यू आर नॉट पेनलाइज्ड एज मच, यू हैव टू बी लार्जली एक्यूरेट, दैट इज द थिंग. एंड डिस्क्रिप्शन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी नो, द पॉइंट इज whether we are precise on location or not. तो उसके लिए regularly referring to the atlas helps. You can say this, most of the places we know, but as I told you कि we are talking about someone who has उसका ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कैसे प्रिपेयर करे? सो मुझे लगता है सर, जो इन्वायरमेंट का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, उसका एक मेजर पार्ट मैपिंग है. तो उसमें हम लोग ऐसे भी मैप्स पढ़ते ही हैं इंडिया स्पेसिफिक, तो वो ज्योग्राफी के साथ यहाँ इंटीग्रेट किया जा सकता है कि प्रीलिम्स का आपका इन्वायरमेंट का जो प्रिपरेशन है विद मेंस ज्योग्राफी प्रिपरेशन कैन बी इंटीग्रेटेड. यू एनी वे हैव टू. How do we remember? And at times refer to Google, YouTube videos. को लेकर के एक और बच्चों का पेन पॉइंट रहता है कि उसको याद कैसे करें, भूल जाते हैं बार बार. Sir, I believe again making it interesting, write in your own handwriting. खुद ही map बना लो अगर if you are getting bored, or teach somebody that these are the places, etc. So I think what one can do is one can buy that booklet जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं. उसको आप एकदम लाइक बच्चों की तरह आप उसको कलर पेंसिल से करिए, एंड बाद में आप 10 दिन बाद वो 10 मैप्स रिवाइज करिएगा. आई थिंक दैट विल हैव अ लार्जर यू इम्प्रेशन ऑन योर माइंड. यस यस, मैंने भी इसका एक तरीका निकाला है. क्लास में हम पढ़ते हैं जैसे पर्सपेक्टिव में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, प्लेस का कंसेप्ट, ठीक है? तो प्लेस इज बेसिकली व्हाट? प्लेस इज होम.
और होम में हमें ज़्यादातर चीज़ें पता होती है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। एंड वो क्यों पता होती है? बिकॉज लाइक तुहान सेज एंड अदर सेज, प्लेस इज अ सिचुएशन ऑफ पॉज, ठीक है। तो एक तरीका ये है, अगर हम ये मैप की एंट्रीज को याद करने की कोशिश करें, डेली आप 4-5 एंट्रीज ही करो, ठीक है। और उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उन एंट्रीज को, उसको मेंटली विजुलाइज करो कि अगर मैं सपोज वहाँ पर होता तो वो प्लेस कैसी दिखती, ठीक है। यूज़ करो, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, उसकी पिक्चर्स देख सकते हो कि वो चीज़ कैसी है, कैसे दिखती है। तो वो जब आप उसको प्लेस की तरह समझोगे तो वो अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगी और वो याद हो जाएगी। Sir, I think I use my friends a lot here because in Miranda we met so many people from various backgrounds. So if I have to say read about Andhra Pradesh and Telangana, I would imagine my friend she's there, and then what are the places she might be going through. So yes, so that's a really good approach. सो दैट इज बेसिकली पेपर 2 में यही मेन चीज़ें। कुछ और ऐड करना है पेपर 2 के लिए? तो बेसिकली पेपर 2 इज़ अ वेरी जेनरिक पेपर, बट वो जेनरिक देखने में लगता है, उसको हमें जोग्राफिकल बनाना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रोल है प्रैक्टिस का, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं दोनों से कि जैसे हम जब पेपर 1 और पेपर 2 प्रिपेयर करते हैं, तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड इन द प्रिपरेशन? पेपर 1 में कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में, पेपर 2 में कितना टाइम लगा? Sir, I think paper one takes a lot of time, and paper two, because we study GS में, so that is, I mean, very what do you call it, effective, or time कम लगता है, and outcome is very high. So I think if you devote, I mean, say sufficient number of time in paper two, marks का increase is substantial. Where in paper one we have to study a lot to get that much यस marks. यस। For me also, I was doing it largely with you, sir. The way you were teaching paper one पहले तो I devoted time for paper one before prelims, और prelims और mains के बीच में जो time था उसमें paper two किया. But again, it is more applied, so you don't have to learn new concepts there. You just have to understand the linkages. So it requires less time. यही बात मैं भी मतलब एम्फसाइज करता हूँ। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं बिकॉज इन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स के टर्म्स में देखें तो व्हेन यू आर डिवोटिंग लॉट्स ऑफ टाइम फॉर पेपर 1 और उसमें आपका पेपर 2 आपने उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया है, तो इट फील्स लाइक कि हमारा बहुत सारा प्रिपरेशन बचा हुआ है। लेकिन जब आप एक बार कमांड हो जाता है पेपर 1 के कंसेप्ट्स पर, तब पेपर 2 करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड आइडियली मुझे लगता है कि इट टेक 60-65% ऑफ टाइम पेपर 1 में लग जाता है, 35% 40% टाइम में आप अपना पेपर 2 कर लेते हो, ठीक है। सो आई थिंक हमने ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर लिया। सो अब दोनों से ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई पूछता है कि ज्योग्राफी लेना चाहिए एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी, सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दैट? बिकॉज देखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। वी हैव सीन दैट कैसे, इनफैक्ट yesterday only one of the students called from the जामिया, ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ही हैज सो मच इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है, बट पूरे जामिया सर्कल में एवरीवन, एवरी सीनियर एंड इवन द टीचर्स, एवरीवन इज सजेस्टिंग कि ज्योग्राफी नहीं ले रहा है। So the first thing would be again, किसी को हम ये बता तो नहीं सकते that you should take this optional, but we can at least tell them that read about it. Read थोड़ा सा basic books, मान basic books का मतलब NCERTs आप पढ़िए, देखिए कि intuitively interest आ रहा है कि नहीं subject में, क्योंकि sustain करना है आपको, वो थोड़ा journey है, तो आपको interest आना चाहिए, वो primary। दूसरी चीज़, आप खुद syllabus देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा आइडिया उससे लगाइए कि आपको ये पसंद भी है कि नहीं। उसके बाद हम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में जा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम कंपेयर विद डिफरेंट ऑप्शनल्स। It's like you have to, if you're confused between sociology and geography, then you also look at that syllabus, you also read those basic books and take some time before deciding which option you will take. But once you decide that you've taken up this, then there's no looking back. You should not be in a position that after 6 months you switch to another option, because then you end up wasting time. So the decision has to be conscious, it has to be thought beforehand, and do this basic homework of looking at the syllabus, judging your own interest, and then going about it.
Sir, I would say that again, know your strengths and weakness. Are you interested in knowing places? I was very interested, so mapping was very easy. For somebody, it might not be. Yes. So identify your strengths and weakness, and if you're able to really devote yourself to the subject, then take it. And I mean, I've never looked at the trends. Say Mm. optional marks are increasing or decreasing. I think it's very variable and it changes. I mean, people only change the marks. So I think yeah. So So I think मतलब इसलिए भी मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या इस जर्नी में बिकॉज टुडे वी आर इन द इंटरनेट एरा इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल टू अस तो इस जर्नी में क्या डाउट आया था दिमाग में क्योंकि बहुत सारा परसेप्शंस हैं कि ज्योग्राफी के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है Sir, after my first mains failure, the Mm. cause was geography because I've scored 219, as I said. But then I also had doubted that whether should I continue with that subject or not. But I feel that in my heart I know that I can sustain this and I can work on it. It's just my lack of courage that I'm not able to, or the lack of finding the knack that this is where I have to work on. I think once the weakness is known that I have not worked here, these are the topics that I have to improve. I think then it becomes easy to work. If you have identified that these are the areas I need to work in the optional, it's easy. The problem is when you're not able to identify why the marks are low. Mm. I think that becomes problematic. So for me, I think there was never this doubt. मुझे लगा वही है कि once you have committed yourself to the subject, then I am not going to doubt it. So हाँ, ये हो सकता है कि मार्क्स थोड़े कम आए, थोड़े ज़्यादा आए, वो अलग बात है. But then वो होगा कैसे नहीं, ये वाला जज्बा रहता था कि ये तो हमारा सब्जेक्ट है, होगा कैसे नहीं. हो सकता है 4 नंबर कम, 4 नंबर ज़्यादा, ठीक है, वो देख लेंगे. In fact, I used to tell my brother, he would be like, what are you going to attempt in the final exam? I said, if UPSC gives only 5 questions, I'll attempt those 5 also. I don't need options. So you have to have, I think that was overconfidence, but you need to have that confidence in yourself. Once you've committed yourself to the subject, you're studying it well, you will do well. And she just said, I think you missed that. She said that it's not the market which is making the marks. I mean, these are the students who are getting those Yes. marks. She has got 323. I mean, that's an example that is achievable, and maybe someone can beat her score as well in future. Yes. So I think we have discussed most of the things. So it was very nice talking to both of you and congratulations for your future endeavor also. ठीक है Thank you, sir.